ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छे, नो इशू। तो एटा आज हम स्टार्ट करबा इकोनॉमी रो सेकंड माइंड मैप क्लास। तो फर्स्ट माइंड मैप क्लास को हम ऑलरेडी तुमको पढ़ाई जो मैंने रैपिड फायर बैच रो अच्छो बा प्री प्लस मेन रो अच्छो तुम देखिथिबो तुम कंटेंट को जीवो। कंटेंट रे देखिबो जीएस 1 को जीवो ଲେଖା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ର କାଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ଇକୋନୋମି। ତ ଯୋଉଟାକି ଇକୋନୋମି ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାର ପିଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ର ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ 15 ଡେଜ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ୍ କରାଦିଆଯିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସକାଶେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇପାରିଲିନି। ଯୋଉଟାକି ତୁମର ଇଭିନିଂରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ବା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବାଇକ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସକାଶେ। तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଲେଟ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲି। ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ବି ନେଇପାରିଲିନି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟଟା କାଲି ମୁଁ ଆଡିସନ୍ କରିକି ଏଇଟା ନେଇଛି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍କୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଛୋଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହେଉଛି? ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲେଗ୍ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଯୋଉଟା ରହେ, ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରେକ୍ ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଧରି ହଉନି। ତ ମୁଁ ବୁଲେଟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା, ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା, 60-70ରେ ଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ କିନା ସେଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓକେ, ଚलो ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ଦୁଇଟି ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆଜି ରଖିଛି। ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଟପିକ୍ ରଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁମର ହଉଛି କେସ୍ ନା। ଓକେ ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ତୁମର ଯେତେକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ଓକେ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ରିପୋ ରେଟ୍ କାହାକୁ କହିବ, ରିଭର୍ସ ରିପୋ ରେଟ୍ କାହାକୁ କହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ କାହାକୁ କହିବ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆଉ କାହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ? ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇବି, ପଭର୍ଟି ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 5ଟା ଟପିକ୍। ତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଲାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ 4ଟି ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇବି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4, 5, 9ଟା ଟପିକ୍ ରହିଲା, ଏ 9ଟା ଟପିକ୍ରେ ତୁମେ ଏତିକି ସିଓର ହୁଅ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଆକୁ ଭଲସେ ବୁଝି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଉଠୁ 4ରୁ 5 ମାର୍କ ପାଇବ। ମୁଁ ବେଶୀ କହୁନି। ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ରଖିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି, ଇକୋନୋମିର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସରି କରେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ା ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ତ ଇ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲା ପରେ তুমি ପାଇଛୁ, କାରଣ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ବେଶୀ ବି 5 ମାର୍କ ଇକୋନୋମିରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ଆଗରୁ ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେଥିରେ କିଛି ଆଡିସନ୍ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କୌଣସି ବି କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନିଏ ଆଡିସନ୍ ସହିତ ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ମୁଁ ଯଦି ପଭର୍ଟି କହିଲି କ'ଣ ବୁଝିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଭର୍ଟି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ନୋ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖ, ଓକେ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 4ରୁ 5 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଆମେ ଆମକୁ 100ରୁ 100 ନାହିଁ, ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ବିଲୋ ଦ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ତଳକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ପଭର୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ପଭର୍ଟିକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ପଭର୍ଟି ଲାଇନକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରେ ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ପିପିପି। ହଁ, ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। କ'ଣ ତା ପିପିପି, ପରଚେସିଂ ପାୱାର ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ $2 ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଥର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର ଆସିଯିବ, ଯୋଉଟାକି ପରଚେସିଂ ପାୱାର ପ୍ରାୟୋରିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ସପୋଜ ତୁମେ ୟୁଏସ୍ରେ ରହୁଛ, ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛ, ତୁମେ ଚାଇନାରେ ରହୁଛ। ତମକୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି, 100 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଦେଲି। ସପୋଜ ମୁଁ ଧର $100 ଦେଲି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତୁମେ କୋଉ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ୟୁଏସ୍ରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଚାଇନାରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ୟୁଏସ୍ରେ ଗୋଟେ କଫିର ଦାମ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ କଫିର ଦାମ, ଚାଇନାର ଗୋଟେ କଫିର ଦାମ।
याकू ही कुहाଯାए परचेसिंग पावर प्रायोरिटी कुहाଯାए ताकू बेस करी वर्ल्ड बैंक गोटे निर्दिष्ट पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करछि से लाइन टा बहुत इंपोर्टेंट जे कि तुमर आसला केसे ना यूएस डॉलर 3.00 जोटा कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कराछि यूजिंग 2021 प्राइस को बेस करी ताकू रखाइछि दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट किंतु जदि मु क्वेश्चन करे नीति आयोग कथा कहीं ना नेशनल लेवल रे आम जो पॉवर्टी को एस्टिमेट करा दउछि आकु की एस्टिमेट करूछि ना तुमनको नीति आयोग एस्टिमेट करथा नीति आयोग जो टाइप रो पॉवर्टी को कैलकुलेट करे कहीं ना ए गोटे क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको एग्जाम में पचारथला आम जो नीति आयोग जो पॉवर्टी कैलकुलेट करे को टाइप रो कैलकुलेट करा छे मन रखो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया ऑन द मल्टी टाइम नहीं आम अछि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मल्टी टाइमनेस तो पर स्टेप को आम जा बट आमर बेसिसटा कौन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अच्छे आम बेसिस रोचे नॉट द इनकम लेवल आम इनकम लेवल को नहीं कैलकुलेट करना तो नीति आयोग आम जो पॉवर्टी कैलकुलेट कर ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेस करी कैलकुलेट कर देखो तापर आसुच कौन ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी एमती बहुत सारा अच्छे बट खाली आम गोटे जिन मन रखिए जेहतु मुझे टू द पॉइंट रे नौचे एब्सोल्यूट पॉवर्टी मन रखियो जोटा कि बेसिक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठार जदि हमर कम रे आम रहुचे ताको हम कोन कहबा ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोली कहबा चलो तो आउ किसी मन रखिया नहीं केवल हमको दरकार अछि $3 होची जोटा कि हमको वर्ल्ड बैंक हमको पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करछि तो बर्तमान आमे किसी जिनस देखिबा जोटा कि नेशनल प्लानिंग कमिटी जे कि पॉवर्टी सहित रिलेटेड रोचे तो इठी मे भी क्वेश्चन आसी जाई पारे जे नेशनल प्लानिंग कमिटी केबे गठन हेतिला आकु किए गठन करथिले मन रखिबो 1938 रे एटा हेतिला किए करथिले ना सुभाष चंद्र बोस आकु गठन करथिले दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा तो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट होची केसे ना पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया आम भारत रे पॉवर्टी टा केमिति कैलकुलेशन हुए आकु नेकिरी 100% क्वेश्चन आसबार चांस था जे भारत रे पॉवर्टी बा दारिद्र कोड बेसिस रे कैलकुलेशन करा जाए देखो सब जिंस मन रखिया नहीं किछि जिंस मन रखिया दंतकर कमिटी दंतकर कमिटी जे कि कैलकुलेट करंती पॉवर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी पर डे फर्स्ट टाइम एटा क्वेश्चन बहुत आसी जे दंतकर कमिटी जे कि प्रथम थर कैलोरी बेसिस रे कैलकुलेट करथिले काहू पॉवर्टी कैलकुलेट करथिले वाई के अलगे कमिटी जे कि बोथ रूरल आउ अर्बन रो पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करथिले ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कि नेकरी तो एई भली क्वेश्चन आसो जे रूरल रे कैलोरी केते रहय दरकार अर्बन रे केते रहय दरकार आकु किए कहिथिले तुमरो वाई के अलगे कमिटी तापर आसिला लोकद्वाला कमिटी लोकद्वाला कमिटी कौन करथिले पिले इथरे तुमरो काम करबा को नेकी एग्रीकल्चर लेबर जो मान होचंती इंडस्ट्रियल वर्कर जो मान अछंती ताकू नेकी ये कैलकुलेट करथिले केसे तुमरो लोकद्वाला कमिटी के रिवीजन करबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहउछि सर्वप्रथमे तुमरो क्यों कैलोरी को बेस करिकि के कैलकुलेट करथिले पॉवर्टी कैलोरी को बेस करी दंतकर कमिटी दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट सेकेंड रोची केसे ना तुमनकर रूरल एरिया और अर्बन एरिया रो कैलोरी को नहीं कैलकुलेट करथिले वाई के अलगे कमिटी ओके अच्छा देन आसला केसे ना तुमर जो इंडस्ट्रियल लेबर रहउचंती किंबा एग्रीकल्चर लेबर रहउचंती तांको नेकी के कैलकुलेट कले लोकदल कमिटी एबे आसला तेंदुलकर कमिटी तेंदुलकर कमिटी रो इंपोर्टेंट होची ईयर 2009 मसिया ठीक से बड़ी लोकदल कमिटी थिला 1993 थिला लोकदल कमिटी जो आमर जो तेंदुलकर कमिटी थिला ये को बेसिस रे पॉवर्टी को कैलकुलेट करा जाए मन रखियो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कहले कौन बुझिबा और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को किए यूज करथिले ना तुम मन रख आको तेंदुलकर कमिटी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड माने इटी ईयर वाइज रो कैलकुलेशन मंथ वाइज तुमको मंथ वाइज देखा जो तुम केते खर्च करछो केते खाद्य खाउछो ईयर वाइज कैलकुलेट हो तो आको ही कहला कोन मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बोली कहला तो क्वेश्चन आसे जे मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड टा केउ समय रो एटा कहै छै ना तेंदुलकर कमिटी जोटा कि 2009 मसिया आस्तला किसे तेंदुलकर कमिटी आस्तला तापर आसे रंगराजन कमिटी मन रंगराजन कमिटी होची 2014 मसिया कमिटी तेंदुलकर कमिटी होची 2009 मसिया कमिटी 2014 मसिया कमिटी जो रहिला इठी कहा को बेस कराला जेमते हमें कैलोरी कथा कहछि इठी कहला
ତା ସହିତ କ୍ୟାଲୋରୀ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ, ମୋଡିଫାଏଡ୍ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଖାଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ସେ, ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି। ବଟ୍ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ମିକ୍ସ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟड କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ତୁମର କିଏ ସେ, ମୋଡିଫାଇଡ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟड ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋଡିଫାଇଡ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟड ତ 365 ଦିନକୁ ବେସ୍ କରି, 7 ଦିନକୁ ବେସ୍ କରି, 30 ଦିନକୁ ବେସ୍ କରି। ଓକେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ମୋଡିଫାଇଡ ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟड ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ ଆଉ ଏଠି କେତେ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖ, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସାଧାରଣତଃ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ମଲ୍ଟି ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତାର୍ଥ ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହୁଛି ତମର ଦିଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହচ্ছে ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହচ্ছে ନ୍ୟାସନାଲ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। তো ওভারঅলি এতে আমি কোণ মনে রাখিবা, মল্টি ডাইমেনশনাল পভর্টি ইন্ডেক্স কহিলে কোণ বুঝিবা, এটা কেবে লঞ্চ হয়েছিল, 2010 মସିହାରେ লঞ্চ হয়েছিল। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ୟୁଏନ୍ ଡେଭଲପ ଆକୁ କରିଛି, ତା ସହିତ କିଏ ୟୁଏନଡିପି ସହିତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତ ମିଶିକି ଆକୁ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ତିନୋଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ, লিভিং অফ স্ট্যান্ডার্ড, হেলথ, এজুকেশন, লিভিং অফ স্ট্যান্ডার্ড। তার এতে কেতোটি আমি মুখ্য ইন্ডিকেটর রখুছে, মুখ্য তিনোটি ইন্ডিকেটর রହୁছে। তার অর্থ আমি এইটি ক্লিয়ার হবা যে মল্টি ডাইমেনশনাল পভর্টি ইন্ডেক্স কহিলে কোণ বুঝিবা। মল্টি ডাইমেনশনাল পভর্টি ইন্ডেক্স কহিলে আমি সেগু বুঝিবা जोटा कि 2010 মସିହାରେ ୟୁଏନଡିପି ଆଉ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ये ତିନୋଟି डायमेंशन ରହୁଛି, हेल्थ को ନେଇକିରି, एजुकेशन को नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। अच्छा, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जाको हमें एमपीआई भी कहते हो, ए पर्सन इज कंसीडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इफ दे आर, जदि जार से कौन करे, जदि 3.33% ऑफ वेल्थ ठारू से कम खर्च करुछि, तार जति आवश्यकता अछि ताठू रो 33% जदि से कम खर्च करुछि, आमे ताको कहि परिबा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोली कहिबा। ए डाटाटा इंपोर्टेंट कहीं बहुत थर तुमको प्रैक्टिस देती, बेले बेले ए जगह 1/3 व्यवहार कराए। तो एका जिनस रही जिनस आसूची पॉइंट क्वेश्चन आसूची, डेफिनेटली 100% एटा राइट हम। ताल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हमें क्लियर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे मुख्यतः तीनोटी ग्राउंड रोचे, आम तीनोटी डायमेंशन देखिले, तीनोटी जो डायमेंशन रहिला किंतु केतोटी इंडिकेटर अछि। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जाको एमपीआई बोली कहूचे, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायमेंशन, केतोटी डायमेंशन अछि, दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। मन रखो तीनोटी डायमेंशन अछि, गोटे होची एजुकेशन, गोटे होची हेल्थ, गोटे होची स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, तो एबे आसला हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिकेटर, केतोटी इंडिकेटर अछि, डायमेंशन तीनटा, इंडिकेटर 10टा इंडिकेटर अच्छे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे। जेमती आमे कहि परिबा स्कूलिंग हो, स्कूल अटेंडेंस, तापर आसला कि से तुम मानकर फूड, एमती बहुत सारा जिंस अच्छे। अच्छा, किंतु अच्छा एठी गोटे जिंस हमको मन रखिया अछि। अच्छा, ये गला देखो, किंतु मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जेटा हमें नेशनल लेवल को आसुचे, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखो मैं एठी कहि दोची, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करे किसे, आमे खाली देखिले किसे ना तुमरो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आमे कहिले किसे ना यूएनडीपी कथा कहिले, ता सहित ऑक्सफोर्ड। तो सेही गुडी मोर क्वेश्चन आसला, ताले नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किए रिलीज करे, किए रिलीज करे, मन रखियो नीति आयोग रिलीज करे। मु एठी क्वेश्चन पचारिया चाहूची, कहीं ना एटा को बहुत थोड़ा प्रैक्टिस करैछि, तो कहार मन अछि देखियो, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायमेंशन, केतोटी डायमेंशन अछि तुमरो नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स केते डायमेंशन, तीनोटी डायमेंशन अछि, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, किंतु केतोटी इंडिकेटर अछि। आमे जानथिले मल्टी डायमेंशनल
पवर्टी इंडेक्स रे 10टी इंडिकेटर थिला किंतु माय क्वेश्चन इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स रे केतोटी इंडिकेटर अछि 12टी अछि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स रे 12टी अछि आ दुईटा कोन हला ना मन रख मैटरनल हेल्थ थरे क्वेश्चन टा पचारथिली आ बैंक अकाउंट मन पकाओ थरे क्वेश्चन पचारथिली जे एटा तुमरा ऐड हबो कि नहीं मल्टी डायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स रे যদি গোটে পিলার 100% থিওরি ক্লিয়ার আছে সে ডেফিনেটলি স্কোর করিব তাহলে আমি দেখিলে ম্যাটরনাল হেলথ ব্যাংক আকাউন্ট দুইটাক ন্যাশনাল মল্টি ডাইমেনশনাল পवर्टी इंडेक्स रे ऐड करा जाऊ अछि अच्छा देखो एठी तुमको मु सेपरेट करछि गोटे हला किस ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पवर्टी इंडेक्स नेशनल मल्टी डाइमेंशनल पवर्टी इंडेक्स पब्लिकेशन किस यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड नीति आयोग तापर आसला फंडामेंटल होची तार आसला किस प्राइमरी डाटा सोर्सेस आर मुख्य प्राइमरी डाटा सोर्सेस की होची जे एमआईसीएस बट आ क्षेत्र में कौन होची तुमरो एनएफएचएस रोची आर मुख्य किंतु एटा इंपोर्टेंट नाही बट कोर डायमेंशन कथा हम यदि लक्ष्य करिवा आर मुख्य तो तीनोटी डायमेंशन रोची हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आर मध्य तीनोटी डायमेंशन रोची हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इच वेल्थ माने जाको हम जो मेजरमेंट करछे 1/3 को बेस कर हम मेजरमेंट करछे जदि हम ग्लोबल लेवल रो टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखिबा हम डायमेंशन के इंडिकेटर केटे रहउछि 10टा आर इंडिकेटर केटे रहउछि 12टा रहउछि दुईटा एक्स्ट्रा कोन हला ना माटो तोर रहउछि ये बैंक अकाउंट आउडला किसे मैटरनल हेल्थ बैंक अकाउंट मैटरनल हेल्थ आ बैंक अकाउंट आई होप समस्ते पवर्टी को बुझी पारछ ये सुन समस्त पवर्टी चैप्टर को बुझी पाइल हाँ कि ना टिके आज मुझे भलसे एफर्ट दे पारुनी कहीं ना होल डे टिके इश्यू सकाशे क्लास भी नहीं पाइलेनी तापरे सब प्रकार एक्सरे एक्स वाई जेड जो टेस्ट अच्छी सब तरह टाइमिंग मोर पळेला ओके से फुल टायर्ड माने जानि तो जो ओढा गरम चलची ओके पूरा क्लियर तो मोर कहया कथा जे पवर्टी ऊपर एथर गोटे क्वेश्चन 100% मु तुमको जो थियोरिटिकल नौछि जति गोटे पिला एबे देखो गोटे जिंस होछि जे लास्ट 15 दिन कौन हम जदि जन की क्वेश्चन पचारे लास्ट 15 दिन को वेस प्रीलिम क्लियर कर दो मु कहबी हां तो कौन ता क्लियर करियो सपोज जने को एबल माने कैपेबल अछि 20 टा क्वेश्चन कला होय बेसी नहीं 20 टा क्वेश्चन 40 मार्क किंतु ये 15 दिन से 100% एफर्ट दबो आउ 15 टा क्वेश्चन बढ़ी पारे दैट मींस 35 टा क्वेश्चन रो 45 टा क्वेश्चन हे पारे तार्थ ए मोमेंट रे गोटे पिलर इंप्रूवमेंट हो तो आमे जो प्रोसेस से जाउछे ओके अच्छा तो एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को अनएम्प्लॉयमेंट को जिबा थैंक यू किछि सुने अच्छा अच्छा ए पर्यंत समस्त क्लियर আছে नो इश्यू चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट होछि अनएम्प्लॉयमेंट देखो अनएम्प्लॉयमेंट कौन अच्छा ताले बर्तमान से हम केतरा चैप्टर इकोनॉमी रो सइला पूरा भल से हाँ माइंड मैप कास्ट आप रे बर्तमान सो हे जो तुमको आउ थे देखै देबी नोडे देखो चारोटी टॉपिक सइला प्रथम थिला होछि कि से इन्फ्लेशन दुई रे थिला एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन तीन रे थिला तुमनकर बैंकिंग चार रे थिला होछि कि से ना पॉवर्टी पांच रे होला कि से अनएम्प्लॉयमेंट जोडा पडिगा बर्तमान देखो अनएम्प्लॉयमेंट रे बेसी हमें जीवन वेरी डीपली जीवन में जतिक हम पे दरकार सेतिके देखो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस करेंट वीकली स्टेटस एरा सब किछि आवश्यक नहीं मन रखिया एरा हमें पढिबा बट मोर गोटे क्वेश्चन आसुछि समस्त को जे हमर जो अनएम्प्लॉयमेंट अछि हम कैलकुलेट की करते अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट की करते एनएसओ तो मन रख एठी गोटे जिंस आसुछि आगुरु तुम मानकर एनएसएसओ कैलकुलेट करथला बट वर्तमान की कैलकुलेट करछि ना एनएसओ मन एनएसओ कहले काहा बुझिबा ना दुईटी को नहीं बुझुछि गोटे अछि एन एस एस ओ सी एस ओ ओके तो आको बुझ तो हमें एठी गोटे जिंस को मन रखिबा जे तुमर जो अनएम्प्लॉयमेंट अछि ए अनएम्प्लॉयमेंट को के कैलकुलेट करछि मन रखियो तुम मानकर ये किसन एनएसओ कैलकुलेशन करछि अच्छा पीरियोडिक लेबर फोर्स कहले कोन बुझिबा व्हाट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स
कि कौन जे पीरियडिक लेबर फोर्स कंडक्ट बाय द एनएसएसओ। ओके। अच्छा, वो कैलकुलेट ऑन ओके। हाँ। अच्छा, हाँ वो जे कैलकुलेट करछि अनएम्प्लॉयमेंट को। अच्छा, मु जति गोटे स्टेटमेंट दउछि, जति मु गोटे स्टेटमेंट दउछि वर्तमान अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट होछि एनुअल बेसिस ये सुनो ना आम कहीपर पीरियडिक लेबर फोर्स वाज आनुअल बेसिस रे हाँ कि ना। यस, मन रख इयरली आनुअल बेसिस रे। तो प्रथम कथा आम क्लियर हेले आमर जो कैलकुलेट करा पीरियडिक लेबर फोर्स जो थ्रू रे कैलकुलेट होछि ता इयरली बेसिस रे रहउछि। आकु कैलकुलेट किए करछि ना एनएसएसओ। फास्ट कथा, अदरवाइज आउ किछि मन रखिया नै। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, जमती लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्क फोर्स रेशियो, এটা କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧର କାମ ଟୋଟାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ରେସିଓ ଯେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା, ଓକେ, ଏସମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ତମକୁ ସେଇ କଥା ସେ ମେନସନ କରିଦେଲା ଯେ କି ଏନଏସଓ ଯେ କି ତମମାନଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ କରେ। ଏଥିର କିଛି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଉ ଟାଇପର। ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଟା ମନେ ରଖିବ। ଏନଏସଓ, ଏନଏସଓ ଟା କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ? ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏନଏସଓ ବୋଲି କହୁଛେ, କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ? ମନେ ରଖିବ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ମୋସ୍ପି, MOSPI, ମୋସ୍ପି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ। ତାର ତ ଏଇଠି ବି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଇଟ୍ ମାନେ କ୍ରିଏଟେଡ ଅନ୍ 23 ମେ 2019 ଏଟା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଦିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ ଅଫିସ ଯାହାକୁ ଏନଏସଏସଓ ଅଛି, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି କାହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଏନଏସଓ କୁ ତିଆରି କରାଉଛି। ଏଟା କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କିଏ ସେଟା ତୁମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋସ୍ପି ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି? ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ। କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ସକୁ ନେଇକି ପଚାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ କରେ କିଏ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କହି ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, କାହା କହିବା? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେ ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କିଏ କହିପାରିବ? ମୁଁ ସପୋଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ସପୋଜ, ଓକେ ଓକେ, ତୁମକୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏ ଦୋକାନରେ ବାପା ବସନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବସନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଜବ୍ କଲିନି, କିଛି କଲିନି, ସେଇ ଦୋକାନରେ ବସିଲି। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଜଣେ ଦି ଜଣ ହେଲେ ଯେତିକି କାମ ହଉଛି, ତିନି ଜଣର ମଧ୍ୟ ସେତିକି କାମ। ତ ମୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଓକେ, କିମ୍ବା ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବ? ଏନର ଆନ୍ସର, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଦେଖ, ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ ଥିବ। ଏଠି ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳୁଛି ବଟ୍ ଏଠି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଆଇ ଆସିଯାଉଛି, ଏଆଇ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବିକଜ ହଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମ କତିରେ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏଆଇ କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବା। ଓକେ, ଡିଫର ବିଟୱିନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରୋସେସଡ ବାୟ ଦ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଦ ଜବ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ତ ଏଠି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାହା କାହା ଭିତରେ ରିଲେସନ ଆସୁଛି? ଜବ୍ ଆଉ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ଆସୁଛି ରିଲେସନ। अच्छा, क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा कहबो? व्हाट इज द क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट? कहीं ए सब जिंस ही आपको क्वेश्चन ही पचारे। क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म। थैंक यू। तापर आसला किए से ना तुम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा कहबो? अच्छा, सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो सीजन हम। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो से ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज देखो, तुम्हें वर्तमान गोटे जॉब करछ, से जॉब छाड़ी आउ गोटे जॉब करबा जाउछ। ए जो गैप रहउची, ए जो गैप रहउची, ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एक्सक्यूज,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको ही कुआ जाए कौन फ्रिक्शनल और ट्रांजिशनल। अच्छा ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଣ୍ଡର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହା କହିବ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ମିଳୁନି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ କାଜୁଆଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। କାଜୁଆଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବ? କାଜୁଆଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜି କାମ ଅଛି କାଲିକି କାମ ନଥିବ। ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ଡେଲି ୱେଜ୍ ଲେବର ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ଆଜି କାମ ମିଳିଲେ କାମ କରିବେ ବଟ୍ କାଲି କାମ ମିଳୁନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବା କାଜୁଆଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା କିଛି କଣ୍ଡିସନକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତମେ ମତେ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦବ ଏଇଟା କେଉଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ସେଠି କାମ କରୁଛି ଏକା ଏଫର୍ଟ ଦଉଛି ତ ଏକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ସପୋଜ ସ୍କିଲର ଅଭାବ ଅଛି ଏଠି କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ସ୍କିଲ ଏଠି ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସ୍କିଲ କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ ଜବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ସେଟା କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଥର କିଛି ନାହିଁ। आई होप समस्त बुझीपारे दीटा आज जो क्लास को ए क्लास रो पीडीएफ बा रेकॉर्डिंग क्लास जो माने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो प्री प्लस मेन हो रैपिड फायर बैच एटी अवेलेबल करा जो स्पेशल गोटे रैपिड फायर रो माने माइंड मैप रो फोल्डर अछि एटी तुम को अवेलेबल करा जो। आई थिंक समस्त क्लियर अच्छे नो इश्यू। आ कार किसी क्वेश्चन अछि? हां काली सैटरडे रोछि तो टिके जेतो आज तुम कंप्लीटली क्लास नहीं हेलानी काली मैं गोटे लेखा एक्स्ट्रा क्लास नहीं कंप्लीट कर देबे ओके। आ एति ट्रस्ट रखो जेति भी तुमको माने एफर्ट दउछि मु आर हिते तुम क्लियर करियो एटा मो तो मो को तो देखो मोर तुम को एठी ग्यारंटी ओके। तो कौन भी कंडीशन हेले मु 100 रु 100 एफर्ट यदि न दे पड़छि तो चेष्टा करे एटलीस्ट 50% एफर्ट दवा पाए ओके। तो बहुत सारा पिला भी आज कॉल भी करथिले कॉल भी रिसीव करि पाइलानी तो किछि कंडीशन रहि गला ओके। थैंक यू।